Good afternoon, everyone. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. And I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itch a lot. It may be due to the chemicals in certain food items, allergy to certain medications, insect sting, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self-medication can actually worsen the symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early relief. And in today's digital world, it's always a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its type, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So today we have with us renowned dermatologist Dr. Priyanka Tupekar, live from Dr. Priyanka's Skin Clinic, Pimpri Chinchwad, with who will educate us more about urticaria and its management. Dr. Priyanka Tupekar is MBBS dermatologist and has an experience of 9 years in this field. She has completed her MBBS from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik in 2002 and dermatology from Maharashtra Institute of Medical Education and Research in 2014. A very warm welcome to you, Dr. Priyanka. It's a pleasure to have you with us. Thank you so much, Amita. Thank you for the introduction. So let's get started, dear friends. Definitely. And as we are going to discuss about a very important topic, which is the management of urticaria. First of all, doctor, we would like to know what is urticaria exactly? So yes, good afternoon, everybody. So let's get started with this knowledge of like what is urticaria exactly. As already our host said that almost 1/5 of the population, they experience once in lifetime at least the urticarial rash or allergy. So basically urticaria is a skin condition in which there are itchy erythematous means red hives or wheals on the skin. Most of the times burning is also present and itching is so much so that it is uncomfortable or annoying for the person. So hives means in Hindi we call them as dadode and Marathi we call them as gandhi utne. So urticaria in short is pitti utna ya gandhi utne. So most I am sure that like most of the people or persons they must have experienced some or the other time in their lifetime, and calculations or numbers also say that 10 to 25% of the people once in lifetime they experience the urticarial rash. Yes. Definitely. एंड इसीलिए इस पर बात करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि ये काफी कॉमन है, कई लोगों को होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. डॉक्टर, व्हाट आर द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर urticaria? Okay, there are wide ranges of causes. So I'll go first with the broad classification. Definitely. So urticaria is classified into acute and chronic. Acute means जो symptoms आने के बाद या rash आने के बाद वो on and off आते रहती है and it doesn't last for more than 6 weeks. Like जैसे आपको urticaria का rash शुरू हो गया, on and off आता रहेगा, but with treatment, with avoiding trigger factor, the urticarial rash will go off or it will reduce within less than 6 weeks. And जब ये more than 6 weeks के बाद भी रहती है और it is chronic for months, then it is called as chronic urticaria. So दोनों के almost reason same है. So mostly जो मतलब common reason है, so कुछ medications जिससे हो सकता है. The most common reason amongst all is a food allergy. So जो खाने की कोई चीजें रहती है और food items that we eat, even the what we consume on daily basis, which we are taking from birth, so those items can cause allergy at some point time point of our life. So food items most commonly those are like fish or nuts
और जैसे एनी कोई सब्जी या जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, तो हर एक को वो जरूरी नहीं है कि यही कॉमन चीजें और उसी से होगा. एवरी इंडिविजुअल कैन हैव एलर्जी विथ एनी ऑफ द फूड आइटम. सो मोस्टली जो कॉमन रहते हैं वो ये चीजें रहती है. अदर थिंग एज आई मेंशन्ड, इट इज मेडिकेशन. सम किसी गोलियों से वगैरह हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है. आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों ने कि आफ्टर वायरल फीवर, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इन किड्स also and in adults also we find the urticarial rash has occurred. तो वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये हो सकता है. Then next thing is climate extreme changes, और जैसे बहुत ज्यादा ठंडी, कोल्ड, और बहुत ज्यादा हीट, इन दोनों की वजह से भी बहुत लोगों को अर्टिकेरिया होता है. कोई रूटीन में चेंज, जैसे दे आर गोइंग टू अनदर प्लेस, वहाँ का वेदर अलग है, कुछ चेंज हो गया रूटीन में, वो है. एंड देन अदर रीजन कैन बी इंसेक्ट बाइट रिएक्शन. इंसेक्ट बाइट मतलब कोई भी छोटे से छोटा कीड़ा रहो, वो अगर काटता है और उससे आपका एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर होता है, तो उससे भी अर्टिकेरिया दैट पर्सन कैन हैव. और ऐसे भी कोई रीजंस रहते हैं, जैसे स्ट्रेस से अर्टिकेरिया बढ़ता है, अल्कोहल इंटेक से भी बढ़ सकता है. आप कोई दूसरे भी कोई आपको बीमारी रहेगी, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, या कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है. तो वो अगर है तो वो उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है. तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत कॉमन है. और कोई ऐसी चीजें रहती है कि जिसका हम लोग वी कैन नॉट डायग्नोस इट, और वी कैन नॉट पिन पॉइंट दैट फॉर इन सम पीपल, पर्सन, पेशेंट्स, वी कैन नॉट पिन पॉइंट वन रीजन. सो उसमें हम लोग एक बोलते हैं कि वो इडियोपैथिक है, मतलब उसका रीजन हमें पता नहीं है. सो ऑटो इम्यून एक डिसीज, उसमें भी अर्टिकेरिया होता है, और इडियोपैथिक भी रहता है जो हमें पता नहीं है. So these are overall reasons for urticaria. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अर्टिकेरिया के पीछे, और कई बार तो जैसा आपने कहा कि रीजन पता भी नहीं चल पाता, डायग्नोस भी नहीं हो पाता. तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि अर्टिकेरिया कितना सीरियस हो सकता है. क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? क्योंकि जैसा आपने कहा डेफिनेटली इचिंग तो बहुत होती है, उसे कंट्रोल करने पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है डॉक्टर? See, there are some stages, mild, moderate, severe. तो वो अर्टिकेरिया के जो व्हील्स रहते हैं, जो लीजन्स रहते हैं, वो कितने एरिया में रहते हैं, पूरे बॉडी कवर करते हैं, उसका सिम्टम की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब बहुत ज्यादा ईची है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, उसके ऊपर उसका सिवियरिटी ग्रेड डिसाइड होता है. बट मोस्टली, आई मीन आई कैन से ऑलमोस्ट मोर देन 90% टाइम्स इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. हाँ, अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो उसमें एंजियोइडिमा एक करके देयर इज वन कंडीशन. सो एंजियो, व्हाट इज एंजियोइडिमा? इट इज अ मोस्ट लाइक बहुत क्या बोल ऐसे वी कैन से लाइक ज्यादा हाइपर रिएक्शन टूवर्ड्स दैट एलर्जन और दैट ट्रिगर. सो उसमें क्या होता है, देयर इज अ स्वेलिंग ओवर लाइक अराउंड आईज, ओवर लिप्स. सो म्यूकोक्यूटेनियस जो पार्ट्स होते हैं, हैंड्स है, पाम्स एंड सोल्स है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, और ये सारी चीजों में उसमें स्वेलिंग आ जाती है. दैट टाइम इट कैन बी सीरियस और सीवियर. So in any case or any stage of urticaria, one must consult a dermatologist, qualified dermatologist, क्योंकि वो mild से लेके severe तक कब चला जाएगा, you will never know. इसीलिए अर्टिकेरिया के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये सेशन भी हम कर रहे हैं. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सके कि अर्टिकेरिया क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, और क्यों बहुत जरूरी है कि अर्टिकेरिया हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाए, सही सलाह ले, ताकि उसके जो खास तौर पे जब वो एक बहुत सीरियस रूप ले लेता है, उससे भी हम बच सके. डॉक्टर, बहुत आम लोगों के लिए कई बार स्किन पे किसी भी तरह की एलर्जी हो या कोई रिएक्शन हो, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, ये एक्जिमा है कि ये अर्टिकेरिया है कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन है. आपने कहा कि चकते हैं, या जो लोकल लैंग्वेजेस में हम इसके नाम रखते हैं, लेकिन वो लोग जिनको अभी तक अर्टिकेरिया नहीं हुआ है, वो शायद अभी तक सही से नहीं समझ पा रहे हैं कि अर्टिकेरिया कैसा दिखता है. तो उस पे हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ बताएं. ओके, सो अर्टिकेरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मतलब डायग्नोस्टिक फीचर जो रहता है, दैट इज हाइव्स और ददोड़े और गांधी.
सो वो क्या रहता है, एक स्वेलिंग रहती है स्किन पे रेड कलर की, जिसको अगर आप दबाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, उसका मतलब वहां पे आप अगर दबाओगे तो गड्ढा पड़ जाएगा। एंड इट इज सॉफ्ट स्वेलिंग, बिल्कुल हार्ड या वैसे कड़क नहीं रहती है। देन उसके उधर मतलब ऑन दैट स्वेलिंग आल्सो एंड सराउंडिंग टू दैट स्वेलिंग देयर इज इरिथमा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और एक रहता है कि सिवियर इचिंग, मतलब 99% केसेस में जो ये व्हील्स और ददोड़े उठते हैं दोज आर अनट्रीटेड, सो उसमें सीवियर और अनकंफर्टेबल ईचिंग रहती है, पेशेंट कैन नॉट इग्नोर दैट। मतलब अगर आपको अर्टिकेरिया उठ रहा है तो आप का काम में मन नहीं लगेगा, आपका उधर ही ध्यान जाएगा, आप अनकंफर्टेबल रहोगे। तो ये सारी चीजें होती है। और एक उसका फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि थोड़ी देर बाद, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल 4 to 6 hours वो चला जाता है, और उस टाइम ऐसे लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है और आपको यू विल फील दैट देयर वाज नथिंग। सो ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट जब वो आता है तो आप यू कैन नॉट सिट काम, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो आप उससे आपको पहचानना है कि ये अर्टिकेरिया है। So one thing is for sure that we can't ignore urticaria, क्योंकि बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो इग्नोर तो हम कर नहीं सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है डॉक्टर, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, चूंकि हमको पता है कि ये एलर्जी की वजह से हुआ है, स्किन एलर्जी है, तो कई लोग क्या करते हैं, उनको जब अर्टिकेरिया होता है तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो केमिस्ट के पास जाते हैं और कोई भी ओवर द काउंटर एंटी एलर्जेंट ले लिया, तुरंत उनको आराम मिल गया, उनको लगता है यही अच्छा है, हम क्यों डॉक्टर के पास जाए। ये लेना कितना खतरनाक हो सकता है? Okay. See, over the counter medication or self medication is dangerous in any case. So वो simple skin का कोई प्रॉब्लम रहेगा, अर्टिकेरिया रहेगा, या फीवर या कोई और चीजें रहेगी, so I'll strictly avoid, don't go for self medication or over the counter medication. अगर वो आपको पता चलता है कि एबीसी ये आपके फैक्टर से ये हो रहा है, जैसे मैंने बैंगन की सब्जी खाई और मुझे उस दिन शाम को या नेक्स्ट डे आई एम गेटिंग दोज हाइव्स, तो मुझे पता है कि आई शुड अवॉइड दैट। सो सिंपल मेजर्स एट होम इज आप वो पहचानो कि व्हाट इज द ट्रिगर, सो वो आप अवॉइड करो। So that is the simplest method, and I'll strictly tell everyone, please don't take over the counter medications. हर एक medications का कोई डोज रहता है, कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन रहता है, सो विच यू विल नेवर नो, और जो आप ऐसे ही खाते हो आपका उसके साइड इफेक्ट तो होते ही है। बिल्कुल। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले हमसे थोड़ी-सी हिस्ट्री पूछते हैं कि इससे पहले हमको कोई तकलीफ तो नहीं थी, किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर तमाम चीज़ें जानने के बाद, हमारी प्रॉब्लम समझने के बाद वो उस हिसाब से हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब हम ओवर द काउंटर जाते हैं तो हम में से कोई भी जाएगा, केमिस्ट जो है उसको जो ठीक लगेगा वो हमें दे देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके बॉडी अलग है, हम सबकी दिक्कतें अलग हो सकती है। कॉज़, जैसा कि डॉक्टर ने कहा, कॉजेज़ अलग-अलग हो सकते हैं, अर्टिकेरिया बहुत सारे रीज़न से हो सकते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, कॉज़ डायग्नोस हो और फिर डॉक्टर की सलाह मानना ज़रूरी है। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि खास तौर पे, क्योंकि इनिशियली आपने बताया कि एक्यूट अर्टिकेरिया क्या है और क्रॉनिक अर्टिकेरिया क्या है। खास तौर पे जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स होते हैं, आई एम श्योर योर पेशेंट्स आल्सो आस्क यू, विल इट एवर गो अवे परमानेंटली? व्हेन विल इट गो अवे फॉरएवर? तो इसका आपका क्या जवाब होता है डॉक्टर? सी, क्रॉनिक अर्टिकेरिया के बारे में जो कुछ भी स्टडीज हुए हैं, इन दो स्टडीज इट इज फाउंड दैट 1 to 5 years इट is the period when that urticarial symptoms stay. So in most patients, around 5 years के बाद वो almost it comes to the baseline. So उसके भी ट्रीटमेंट की कोई स्टेप्स है या स्टेजेस है? So according to, अगर like I know that patient is a chronic urticaria patient, known patient, so I'll upgrade their treatment in every visit. I'll see to it, I'll take the detailed history. जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है डेली हमारे रूटीन में विच इज अ ट्रिगर फैक्टर। प्लीज रिमेम्बर द वर्ड ट्रिगर फैक्टर, मतलब जिससे हमें ये शुरुआत होती है। सो इट कैन बी एनीथिंग। आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, वहां पे कुछ रहेगा, आप घर पे हो, हाउसवाइफ हो, कुछ आपने कभी बाथरूम क्लीनिंग किया, वो एक डिसइंफेक्टेंट का स्मेल से हो गया, आपने कुछ क्लीनिंग किया उससे धूल से हो गया। हाँ, आपके पास पेट है, पेट से भी हो सकता है, जैसे नया नया पेट आए तो इमीडिएटली सेकेंड डे नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, 8 to 10 days, 15 days के बाद।
सो ये सारी चीजें रहती है रूटीन में। कुछ चीजें ऐसी है जो हम खाते हैं, जैसे हमारा ईटिंग ऑयल, जो हम लोग चीजें बनाते हैं सब्जी वगैरह ऑयल में, वो भी एलर्जिक रह सकता है, हमारा सोप एलर्जिक रह सकता है। एंड बेसिकली अगर हमारा स्किन ही सेंसिटिव रहेगा तो उससे भी वो क्रॉनिक बन जाता है अर्टिकेरिया। सो जस्ट आई वांट टू मतलब कंसोल करना चाहती हूँ जिनको क्रॉनिक अर्टिकेरिया है कि ये जरूरी नहीं है ये लाइफ टाइम रहेगा, बट यस अभी एक सपोज पेशेंट ए है, उनको देख के मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि ये इतने ही दिन में जाएगा, इतने दिन रहेगा, या इट विल लॉन्ग फॉर लास्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। बट उसके लिए काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारे टेस्ट अवेलेबल है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी, इफ यू आर नोन क्रॉनिक अर्टिकेरिया पेशेंट, डोंट लूज होप, देयर इज अ ट्रीटमेंट, देयर इज अ क्योर। और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत मतलब कभी ठीक नहीं होने वाली ऐसी बीमारी नहीं है। बिल्कुल रिलीफ मिल सकता है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसलिए डोंट सफर इन साइलेंस। डेफिनेटली बहुत आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है अगर अर्टिकेरिया होता है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली इचिंग और आपका फोकस भी अपने काम पे नहीं हो पाता। मेनी टाइम्स पीपल स्टॉप सोशलाइजिंग और गोइंग इन पब्लिक। तो इन सब से आपको निजात मिल सकती है। जरूरत बस इतनी है कि हम सही समय पे, जब भी हमें ये अर्टिकेरियल रैशेस हो रहे हैं, तो हम जाएं और एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर, what are the potential complications of urticaria if left untreated? अगर उसको ट्रीट ही नहीं कराए तो क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया स्टेजेस आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो acute urticaria आप अगर अच्छे से if you are treating it immediately with the qualified dermatologist, so we can stop it for going towards the chronic. तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है अगर acute urticaria आपने इग्नोर किया या you are not trying to find out the reason और ट्रीटमेंट नहीं लिया ठीक से, तो which can turn into chronic urticaria, वो एक मेजर है। एंजियोएडिमा अगर हो गया, सिवियरिटी ऑफ अर्टिकेरिया अगर बढ़ गया, तो इट इज डेफिनेटली अ लाइफ थ्रेटनिंग ये, क्योंकि म्यूकोक्यूटेनियस जो हमारे सरफेस एरियाज या इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मतलब ब्रेथलेसनेस वगैरह ये सारी चीजें बाद में होने लगती है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग रहता है। और मतलब इवेंचुअली आई हैव सीन पेशेंट्स who are chronic having chronic urticaria और वो बहुत दिनों तक घर पे ही उसको ये कर रहे थे, so they develop some different stress about it और उसमें से वो either anxiety में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो they avoid going out, they avoid going meeting people, so ये चीजें रहती है कि उनको बाहर खाना, बाहर किसी के पास जाना, ये चीजें वो अवॉइड करती है और वो that affects their daily routine mentally. So this can be considered as a complication, of course, of the urticaria. Yes, life threatening बाकी internal organs पे आप अगर के बारे में या related complications बोल रहे हो तो there are very less. So ऐसा नहीं है, but जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो एक तो skin condition है, skin we can see. So and urticaria ऐसा है कि itch किए बगैर हम रह नहीं सकते, तो itself is a complication कि वो annoying रहेगा और socially hamper करेगा लाइफ। बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। जैसा आपने अभी मेंशन किया डॉक्टर की स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि अर्टिकेरिया की वजह से बहुत सारे जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं पेशेंट्स को, तो वो एंजाइटी होने लगती है या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या स्ट्रेस की वजह से अर्टिकेरिया होता भी है डॉक्टर? सी इट इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड कि स्ट्रेस की वजह से या स्ट्रेस इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया हो सकता है, बट क्लिनिकली हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगा तो उनका सारा ही रूटीन इट इज चेंज्ड, their eating habits are changed, they like they don't follow the routine, so those factors get combined with the stress and then that can lead to urticaria. एक चीज है जो देखी गई है इवन इन द स्टडीज दैट स्ट्रेस एग्रेवेट्स अर्टिकेरिया। आप अगर ऑलरेडी क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हो, आपके लाइफ में कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट्स हो गया एंड यू आर अंडर वेरी मच स्ट्रेस, तो वो बढ़ता है। इवन इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जब कोविड वेव आया था तो उसके बाद इवन फीमेल्स जो घर पे थी, मेल्स हु वर गोइंग आउट बट वेरी लाइक थोड़े से ये थे, डिस्टर्ब थे, without any reason, without any prior history, people were having urticarial rash. So मतलब stress of course affects or aggravates the urticaria. एक विशियस साइकिल जैसा है, स्ट्रेस की वजह से अर्टिकेरिया होना और अर्टिकेरिया की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ना और फिर वो एग्रीवेट करना।
तो ये एक विशियस साइकिल जैसा है। आपने कोविड का जिक्र किया, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर, कई ऐसे केसेस आए लास्ट 2-3 इयर्स में जहां जो कोविड पेशेंट्स थे उन्होंने कंप्लेन किया कि उनको भी हाइव्स या अर्टिकेरिया हुआ है, या जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई कोविड को लेके, उसके बाद पता चला कि उनको हाइव्स या अर्टिकेरिया हुआ है। क्या रिलेशन कोविड एंड हाइव्स का है डॉक्टर? Studies are going on, or in my clinical practice also, personally I have seen many patients. I tend to ask them since when the urticaria started. So last 1.5-2 years से ऐसे दिखाई दे रहा है कि मतलब जिनको कोविड हुआ था उनमें अर्टिकेरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या जो अगर पहले से अर्टिकेरिया था उसके एपिसोड्स बढ़ गए थे. So many people used to come, last 1 year तो बहुत ज्यादा था कि मतलब आफ्टर कोविड उनको अर्टिकेरिया हो रहा है. बट एज सच अभी तो ऐसा कुछ कॉन्क्रीट इंसिडेंट्स वी डोंट हैव दैट दिस इज द पर्टिकुलर रीजन. वायरस कैन बी द रीजन, मेडिसिन कैन बी द रीजन, लो इम्यूनिटी कैन बी द रीजन, कुछ खाने में बदलाव किए हैं लोगों ने, वो रीजन रह सकते हैं. कुछ और प्रिवेंशन के लिए बहुत कुछ चीजें ट्राई की है लोगों ने घर पे ही, काढ़ा ये वो. So that can be the reason. ये अभी मतलब it's too early to मतलब take a call on that. आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कुछ हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं, वो मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ सानिध्य ठाकुर हैं, पूछ रहे हैं, कैन स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग एग्रीवेट माय अर्टिकेरियल सिम्टम्स? See, smoking itself is harmful for our body. तो स्मोकिंग की वजह से डायरेक्टली अर्टिकेरिया हो ऐसे केसेस मैंने कम देखे, ऑलमोस्ट ना के बराबर. एंड बट यस आई विल सजेस्ट मतलब नो स्मोकिंग इज ऑलवेज बेटर. सो कुछ ऐसा इंटरनल चेंजेस होते हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल की वजह से, जो इन विच जो ब्लड का या अपना इम्यूनिटी वाला जो सिस्टम है दैट गेट्स एक्टिवेटेड. तो बहुत लोगों में क्रॉनिक स्मोकर्स में इट कैन हैपन. अर्टिकेरिया का जो सिस्टम ये रहता है, मैकेनिज्म रहता है, तो वो ट्रिगर हो सकता है, वी कैन नॉट डिनाई इट. और अल्कोहल तो है ही, अल्कोहल से तो होता ही है अर्टिकेरिया. तो अल्कोहल जिनको भी क्रॉनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है एंड रेगुलरली टेकिंग अल्कोहल, थोड़ा सा उन्होंने उसके पास ध्यान देना है. और बट यस मतलब सिर्फ फॉर्मली तो अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ. वंदना नरवरिया है हमारे साथ, पूछ रही है, इज कैन अर्टिकेरिया बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स? यस, देयर इज स्पेसिफिक अर्टिकेरियल क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल उसको बोलते हैं. सो एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग समर्स, एक्सेसिव कोल्ड, जैसे सिंपल एग्जांपल आई गिव यू. We are staying in Pune and then somebody is going to the extreme cold place like जहाँ बर्फ वगैरह गिरती है. So those people also complain, or they also tend to get the urticaria after exposure to the excessive cold weather. So yes, it is very well established कि environmental changes से होता है. Even many people get even the cold water, means many people get it in the monsoon. So for bathing, other things, they avoid the cold water, they use lukewarm or hot water. But if they go out in monsoon, they get wet and they get the trigger, अर्टिकेरिया triggered होता है. जॉन वर्गीस हैं, पूछ रहे हैं, genetic predisposition factors can also cause developing hives or urticaria? Yes, genetically it is मतलब it is a hereditary condition, और it also depends on our जो स्किन टेक्सचर या स्किन इम्यूनिटी रहती है या स्किन कंडीशन. जैसे atopic dermatitis we say it is like a excessive dry and sensitive skin. So we diagnose it like वो तो बचपन में ही पता चल जाता है. तो वो atopic skin जो रहती है, अगर वो inherit हुई है from your mother, father or grandparents, so that can lead to urticaria. मतलब अगर urticaria की उनमें भी tendency है, so you will there are chances that you will get that. Fair enough. फारिया बेग है हमारे साथ, पूछ रही हैं, are there any specific self-care measures or home remedies that I can try to reduce the itching and discomfort caused by urticaria? Yes, actually this point I had kept it for the last, but I'll just brief it. See, firstly find out the trigger. Okay, that is the most important thing. So trigger factor ढूंढना है,
and that you only can do. We as a doctor, we can suggest you these things can cause urticaria. आपके urticaria के लिए, और मैं मेरे patients को बोलती हूँ to maintain the diary और write down the notes कि 2 days I was okay, third day I developed the urticarial rash. So what did I do? वो लास्ट डे, सेम डे कुछ चेंज हुआ है, खाने में मैंने क्या खाया, वो सब नोट डाउन कीजिए, फाइंड आउट कीजिए. ओके, अवॉइड कीजिए वो चीजें, आपके ही हाथ में है. सो वो अवॉइड करना इज वन थिंग. देर आर मेनी काल्मिंग लोशंस लाइक कैलामिन लोशन है, एंटी इच लोशन है. अगर आप क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हो या आपको कभी कभी अर्टिकेरियल रैश आ जाती है, तो वो लोशंस आप यूज कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज योर स्किन. तो स्किन मॉइस्चराइजर अच्छे क्वालिटी का आप 12 महीने साल भर यूज कीजिए. अवॉइड गोइंग आउट इन द सन. जैसे हम लोग बोलते हैं पीक सन वाले आवर्स जो रहते हैं लाइक 10 to 4, अगर आप जा रहे हो तो अप्लाई एम्पल अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सनस्क्रीन. कवर कीजिए आपका फेस, सनकोट पहनिए, स्कार्फ पहनिए, एंड देन गो आउट. ओके, सो अगर आपको ठंडी का प्रॉब्लम है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द विंटर और कोल्ड. बहुत लोगों को प्रेशर अर्टिकेरिया रहता है, लाइक रिस्ट वॉच की वजह से होना, बेल्ट की वजह से होना, फीमेल्स में इनर क्लोथ्स की वजह से होना. सो ये भी बहुत कॉमन अर्टिकेरियल ये है, टाइप है. तो आपको वो अवॉइड करना है. सो डोंट वेयर अ वॉच और वेयर लूज कंफर्टेबमतलब क्लोथ्स. जो मेल्स है उनको बेल्ट लगाना है, तो वो यू फाइंड आउट द अदर वेज. ये चीजें रहती है. सो मतलब few things are there in urticaria which only the patient can do or patient can follow. हाँ, और ये सब करके भी नहीं, drink lot of water. See, this is the major thing because ठंडी में हम पानी पीते नहीं है, कम पीते हैं. मानसून में भी tend to forget or don't drink water. So ये चीजें रहती है जो हमारी स्किन इवेंचुअली ड्राई बनाते जाती है एंड देन स्किन बिकम सेंसिटिव. जो जिनको पहले से अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हम अपनी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ट्राई करना चाहिए. सो समर में थोड़ा स्पाइसी ऑयली कम खाओ. यू टेक लॉट ऑफ लाइक थोड़ा सा जो ठंडी चीजें रहती है वो लो. विंटर में यू कीप योर सेल्फ वार्म. डाइट पे ध्यान रखो. सो ये चीजें हैं जो यू कैन डू एट होम एंड इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड डू इट. बिल्कुल. कीर्ति कपूर का भी यही सवाल था, तो उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. डॉक्टर, हम जब अपने घरों में रहते हैं या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो चीजों को मॉनिटर करना, उन्हें अवॉइड करना या सावधानी बरतना पॉसिबल होता है. लेकिन मान लीजिए मैं बाहर कल खाना खाने गई थी और मैं आई और मैंने देखा कि मैंने चाइनीज खाया था या कुछ खाया था और अर्टिकेरियल रैशेस हो गए हैं. तो बाहर जब हम खास तौर पे जाते हैं या कोई पैक्ड फूड्स भी बहुत हमारे घरों पे आते हैं, तो इनमें से कोई ऐसी चीज है जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से अर्टिकेरिया एग्रवेट हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है? Yes, food with the preservative is like most common trigger factor. तो प्रिजर्वेटिव रहे जो जिनमें है वो फूड तो अवॉइड ही करना है. जो पैक्ड फूड है, जो ये है मतलब एरिएटेड ड्रिंक्स है, वो अवॉइड करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्मेंटेड फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बहुत लोगों को एलर्जी रहता है. देन इन मेनी किड्स और ये कोई ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसकी एलर्जी रहती है. सो इवन इफ यू आर गोइंग आउट, थोड़ा सा लाइक फ्रेश फूड यू टेक और रूटीनली वॉट एवर यू आर ईटिंग और यू ऑलरेडी मतलब पहले खा चुके हैं ऐसे फूड लीजिए. जैसे इफ यू आर गोइंग आउट, यू आर ईटिंग नॉन वेज, फिश में अलग वैरायटी. अगर इफ यू आर अ क्रॉनिक अर्टिकेरियल पेशेंट, तो अलग वैरायटी मत ट्राई कीजिए. जैसे सो दीज आर द थिंग्स. एंड सी ऑन टॉप ऑफ इट, अगर रेगुलर भी फूड आप बाहर खा रहे हो तो वी कैन नॉट से कि वो उससे नहीं होगा. सो यस, फूड इज द लाइक, मेरे तो प्रैक्टिस में 70 to 80% टाइम फूड इज द प्रेडिक्ट, मतलब वही ये है प्रेडिक्टेबल कॉज. बिल्कुल, इस पर थोड़ी और बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल सवाल है हमसे पूछ रहे हैं. राहुल की, कैन सर्टेन ग्रूमिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज शेविंग क्रीम्स, आफ्टर शेव लोशंस और colognes, they can also trigger or worsen my urticaria? See, shaving creams which you are using for years, तो और suddenly आपने change किया and you are a chronic urticaria patient, yes, that can cause. Common thing is perfumes, colognes or deodorants. They are known to cause urticaria or aggravate the urticaria. उससे हो सकता है. Even some strong smells
एनी लाइक डिसइंफेक्टेंट का स्मेल रहेगा, कोई फ्लावर का स्मेल रहेगा, कुछ और रहेगा, पर उससे भी ट्रिगर हो सकता है. ओके, टीना भार्गव का सवाल है, कैन एक्सेसिव स्वेटिंग और फिजिकल एक्टिविटी exaggerate my urticarial symptoms, and are there any preventive measures I can take during exercise or during hot weathers, etc.? Yes, I have already mentioned one classification like physiological or physical. So उसमें एक्सरसाइजिंग भी आता है, उसको कोलिनर्जिक ये भी बोलते हैं, अर्टिकेरिया. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम कुछ हार्मोन्स और कुछ फैक्टर्स हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो हिस्टामाइन है वो रिलीज हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सम सेल्स कॉल्ड एज मास्ट सेल्स. तो वो इट इज वेरी वेल नोन कि मतलब सीवियर एक्सरसाइज के बाद अर्टिकेरिया होता है. इवन कोई पेशेंट्स में हॉट वाटर बाथ से भी अर्टिकेरिया होता है. एंड जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि हीट एंड कोल्ड आर दे आर नोन टू टेम्परेचर्स, दे आर नोन टू कॉज और एग्रीवेट द अर्टिकेरिया. तो ये दोनों चीजों से होता है. सिंपल थिंग इज गो ग्रेजुअल, मतलब विगरस एक्सरसाइज करना, डोंट डू दैट. इफ यू हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग लाइक आफ्टर अ लॉन्ग गैप, you start it with 10 minutes 15 minutes, go slow. जो बॉडी अडेप्ट होते जाएगी, जैसे भी मतलब एवरीबडी नोज अबाउट द वार्म अप. सो वार्म अप एक्सरसाइजेस ज्यादा कीजिए शुरुआत में. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन द एक्सरसाइज, ओके, एंड इंक्रीज योर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज ग्रेजुअली. जैसे आज आपने किया है, कल एकदम डायरेक्टली आप वेट उठा रहे हो और डायरेक्टली विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, डोंट डू दैट. स्लोली गो. एंड जैसे एक्सरसाइज करके आप आते हो, लुकवार्म या कोल्ड वाटर, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो उससे आप यू टेक अ गुड शावर, सो दैट जो स्वेटिंग का ये रहता है वो निकल जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लोथिंग शुड बी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. इट्स मतलब इट्स योर कॉल टू वेयर द फैशनेबल क्लोथिंग्स, बट clothing does matter. So उस clothing loose comfortable और मतलब exercise के इससे आपको choose करना है. Right. Many times patient complain, doctor, that their urticaria or hives get worse during night. तो night में urticaria बढ़ने के कोई correlation है? Yes, actually एक simple correlation है कि हमारा ध्यान नहीं रहता है डे टाइम में. हम लोग some or the other ways we are busy, so we don't pay much attention even if it is itchy. So night time we are relaxed और अपना ध्यान भी जाता है. Some mechanism is also going on where during night time histamine release is more. It is found in few studies. So उससे भी रात में अर्टिकेरिया के और itching for that मतलब not even in the urticaria, बहुत काफी स्किन डिसीजेस में itching they people or patient feel it is more at night. So yes, there is definitely a reason and there is a होता है, it is there. Urticarial patients बहुत tired, बहुत fatigue भी महसूस करते हैं, उसके पीछे क्या reason है डॉक्टर? See, this is our body's reaction or response to a particular action. मतलब trigger हो, allergy हो. जैसे हमें फीवर आता है और फीवर में हमारी बॉडी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है. फीवर इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू द बैक्टीरियल, वायरल और एनी अदर इन्फेक्शन. सो जो अर्टिकेरिया रहता है वो हमारी बॉडी का रिएक्शन रहता है, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम, स्पेशली मास्ट सेल एक्टिवेशन, जो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, वो पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है. एंड एक हिस्टामाइन नाम का जो इट इज अ लिक्विड, सो जिससे अर्टिकेरियल रैश आती है, so which gets secreted, और वो पूरे बॉडी में सिक्रीट होता है. नॉट ओनली द मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि लोकली तो होता ही है, बट अदर जगह पे भी होता है. तो ये पूरा हमारा सिस्टम काम करने में लग जाता है और उससे हमें बॉडी फटीग या थकान हो जाती है. इवन फ्यू पीपल और सम पेशेंट्स दे गेट फीवर, और जैसे बोलते हैं ना फीवरिश लगना, तो इट्स नॉट ऑब्वियस फीवर बट फीवरिश हो जाता है, मतलब वो इट इज कॉमन ये. ओके डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो क्या कोई टेस्ट आप सजेस्ट करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं कि अर्टिकेरिया ही है या इसके कॉजेस क्या रहे होंगे? ओके, see, diagnosis of urticaria mainly is dependent on the clinical examination. Okay, so whenever patient comes to me,
detailed, thorough history, whatever patient is trying to tell me, I listen it patiently. उनको क्या क्या कब से स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन कैसे स्टार्ट हुआ, देन लीजन्स कितने देर तक रहे, कितने फॉर्म में आए, मतलब कितने बॉडी एरियाज पे थे, सो ये सब पूछते हैं. देन स्किन एग्जामिनेशन, वो लीजन्स का एग्जामिनेशन भी डू. सो क्लिनिक का एक सिंपल इन क्लिनिक टेस्ट रहता है डर्मोग्राफिज्म, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि अर्टिकेरिया कितनी इंटेंसिटी का है, और वीज और जो ये है अर्टिकेरियल रिएक्शन रैश वो कितनी जल्दी आती है. सो इट इज अ सिंपल क्लिनिक बेस्ड टेस्ट. मोस्टली डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन, डिटेल हिस्ट्री, इससे हम लोग अर्टिकेरिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं. जो पेशेंट है जिनमें हमें ट्रिगर फैक्टर नहीं ही पता चलता है, तो उनके लिए देर आर सम मोर टेस्ट, और जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में चले जाते हैं, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें सेल कैसे है. eosinophils मोस्टली आर इंडिकेटिव ऑफ आर एलर्जिक रिएक्शन, वो सेल्स देखते हैं. ESR जो है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उससे हम लोग पता कर सकते हैं. यूरिन टेस्ट में पता चलता है कोई इन्फेक्शन है, ये है, उससे पता कर सकते हैं. इवन सी रिएक्टिव प्रोटीन इज अ टेस्ट, वो कर सकते हैं. और लास्टली एक एलर्जन टेस्ट रहता है जिसमें वेरियस एलर्जन भी यूज स्किन पे, उसका टेस्ट होता है, और उसमें से पता चलता है कि किस एलर्जन की वजह से उनको वो रिएक्शन आ रहा है. तो जैसे उसमें से n नंबर ऑफ एलर्जेंस रहते हैं, फूड आइटम्स के एलर्जन रहते हैं, परफ्यूम्स के रहते हैं, बहुत सारी चीजों के रहते हैं, मेडिसिन के रहते हैं. तो वो एक फाइनल टेस्ट रहता है, तो वो भी कर सकते हैं. और एक स्किन का एक टेस्ट रहता है, ऑटोलॉगस सीरम सेंसिटिविटी टेस्ट. तो वो एक टेस्ट रहता है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं, उसमें से सीरम सेपरेट करते हैं, एंड दैट सीरम वी इंजेक्ट इन पेशेंट इटसेल्फ विथ अ कंट्रोल ऑन अनदर हैंड विथ नॉर्मल सलाइन. तो वो कंपेयर करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि ये है. बट in clinical practice so far, in my experience, diagnosis ऐसे ही हो जाता है, मतलब clinically हो जाता है. But cause अगर we have to go in depth, so all these tests are available. और ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है डॉक्टर अर्टिकेरिया के लिए? Yes, so treatment also, it is not just treatment, it is overall management of urticaria. Okay, Right. so जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, अर्टिकेरिया का मैनेजमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल, फ्रॉम द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो स्टार्ट होता है. तो उन्होंने स्टार्ट मतलब देखना चाहिए हमें क्यों हो रहा है. एंड प्लीज डोंट गो फॉर OTC मेडिसिन, कंसल्ट योर डॉक्टर. हम लोग यहाँ पे आपका हिस्ट्री लेंगे, आपको पूछेंगे सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, ऑल डिटेल हिस्ट्री. उसके बाद देर आर वाइड रेंज ऑफ मेडिकेशंस. ओके, कुछ नॉन सेडेटिव रहती है, मतलब जिससे नींद नहीं आती, कुछ सेडेटिव रहती है जिससे नींद आती है, जो भी प्रेफर एट नाइट. सो ये आई जस्ट बस्ट अ मिथ हियर कि ये जो हम लोग ईचिंग और अर्टिकेरिया के लिए नाइट वाले सेडेटिव मेडिकेशन देते हैं, दोज आर नॉट स्लीपिंग पिल्स. प्लीज कंसिडर, ये कीजिए, ध्यान दीजिए, दीज आर नॉट स्लीपिंग पिल्स, दीज आर एंटी एलर्जी और एंटी हिस्टामिनिक पिल्स. जो मैंने बताया, हमारे बॉडी में एक हिस्टामिन लिक्विड फॉर्म होता है, अर्टिकेरिया उससे बनता होता है. तो वो उसको कम करने के लिए देयर आर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स. तो उसके क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज नॉन सेडेटिव एंड सेडेटिव, और उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है. आई विल नॉट गो इन डिटेल्स, बट देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ ड्रग्स. उसको कम डोज में वी कैन स्टार्ट इट, वी कैन इंक्रीज द डोज एज पर द पेशेंट्स वेट एंड रिक्वायरमेंट. वी कैन मॉनिटर देम. सो सिंपल एंटीहिस्टामिनिक है. फिर देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है. So in severe chronic urticaria which is non-responsive to the other medications, in that case only we prefer or we prescribe corticosteroids, oral steroids. Mostly medical से जो patients लेते हैं, medical वाले उनको steroid drugs देते हैं. So please be aware and don't take OTC medicines, those are not required. So in cases where there is like हमने दे दिया है and it is 0% responsive, हाँ 10% भी response आ रहा है, तो we'll continue same treatment or we'll update the treatment. We'll not go towards the steroid, oral steroid intake, or we will not prescribe you. तो वो अगर कोई conditions है जिनमें आपको relief ही नहीं मिल रहा है, तो we don't have any other option. और most of the doctors, dermatologists, we tell the patient that we are starting you on the steroids, and these are necessary. This is the dose, and ऐसे ही लेना है जो हमने बताया.
कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग रेंज है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी है. तो वो भी उसको दैट विल रिक्वायर्ड बिगर मेडिकल सेटअप और इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं उसके पहले. अगर ऐसे पेशेंट आते हैं जो सालों से अर्टिकेरिया से परेशान है, तो या फ्रीक्वेंटली अर्टिकेरियल एपिसोड्स आ रहे हैं, उनको रैश आ रहा है, तो फॉर देम वी पुट देम ऑन द थर्ड कैटेगरी, मतलब थोड़ा हायर कैटेगरी. तो उसमें वो तो इट्स लाइक ऑल इन्वेस्टिगेशन करके पेशेंट का कंसेंट लेके स्टार्ट करें. बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें अर्टिकेरियल रैश हो रहे हैं तो हम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं. जो टेस्ट हमें डॉक्टर बोले सिर्फ वही टेस्ट कराएं, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर हमें दे उसे फॉलो करें. एंड ट्रस्टिंग योर डॉक्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर प्रियंका, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और अब एटलीस्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं ये अर्टिकेरिया के बारे में काफी कुछ समझ गए हैं, और ये जरूर समझ गए हैं कि सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर मेडिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है. थैंक यू सो वेरी मच once again. Thank you. Thank you. And viewers, thank you for your active participation in today's session. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.